The World Bank says 40% of the population in Bangladesh doesn't have access to electricity, and many more in Bhola don't have reliable access to gas. This restaurant in Burhanuddin uses one of the makeshift gas pipes just under their feet. The people of Burhanuddin, even those who've lost their homes to climate change, feel that they at least should benefit from it. আসসালামু আলাইকুম আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি জুনেদ আপনারা देखते जुनेद अली ऑफिशियल और मेरे साथ हैं वसीम अली आज बात करने वाले हैं गैस डिस्कवरी में चेंज बांग्लादेश फ्यूचर गैस की जो डिस्कवरी है ये बांग्लादेश का फ्यूचर चेंज कर देगी बांग्लादेश में भारी तादाद में ज़मीन की तह के नीचे गैस मौजूद है और जहां भी इसकी दरियाफ्त होती है लोग तो खुश होते हैं लेकिन हुकूमत इसके ऊपर इक़दामात नहीं करती। अगर बांग्लादेश की हुकूमत इसके ऊपर इक़दामात करे तो ये बांग्लादेश का फ्यूचर बदल सकती है। आज अगर देखें तो कतर जो है वो किस लिए अमीर हुआ, वहां पर गैस है, वहां पर तेल है। गैस की वजह से आज अमेरिका को सप्लाई दे रहा है कतर सप्लाई दे रहा गैस की एलपीजी की। तो आज बांग्लादेश भी गैस की मदनियात से माला माल है। बांग्लादेश के अंदर भी भारी तादाद में गैस के ज़खायर मौजूद हैं जो आने वाले टाइम पे बांग्लादेश का फ्यूचर बदल सकते हैं, जो आने वाले टाइम पे बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर वीडियो है कि गैस की डिस्कवरी हुई है बांग्लादेश से और इसको रिपोर्ट कौन कर रहा है? अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। अल जजीरा एक बड़ा मीडिया ग्रुप है और ये रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश से जो ज़खायर निकल रहे हैं ये बांग्लादेश का फ्यूचर बदल देंगे। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। Like many places in rural Bangladesh, Burhanuddin is awash with tube wells. These pumps are meant to bring up safe drinking water from underground aquifers. But these wells here are not like any others. Attached on top of them, there are different pipes that carry a more lucrative resource, natural gas. There are so many of these wells here, about 100 like this one, just in this area. There is a lot of gas in this part of the country. Residents of Burhanuddin have known about this gas supply for years. But it was only in recent weeks that Bangladesh's government announced that it had found a large reserve of natural gas here, one that could double its dwindling commodity. But the low-lying island of Bhola, which is in southern Bangladesh, is also on the front line of climate change. Half of its land has already been lost to encroaching waters. The environment and climate change have been the focal points of many recent protests. There have been demonstrations against plans to build a coal-fired power plant in the Sundarbans rainforest. So the prospect of more fossil fuels being exploited here in Bhola has many people concerned. The State Minister for Power, Nasrul Hamid Bipu, tells Al Jazeera Bangladesh's energy needs can't be ignored, and the government plans to start extracting gas from Bhola in June. With their island ravaged by climate change, Bhola residents say they are among those who stand to lose the most from the continued exploitation of fossil fuels. But in the short term, they could also benefit from a government program to extend natural gas to the region. The World Bank says 40% of the population in Bangladesh doesn't have access to electricity, and many more in Bhola don't have reliable access to gas. This restaurant in Burhanuddin uses one of the makeshift gas pipes. It's not the best situation because this sort of setup could easily result in accidents. There are occasionally small explosions. So let's see what the government does now. Let's see if they take steps to help us. The force of the gas pushes the water constantly to the surface. For years, it's never stopped gushing out. With such an abundance of fuel just under their feet, the people of Burhanuddin, even those who've lost their homes to climate change, feel that they at least should benefit from it. Mahir Sattar, Al Jazeera. तो जी व्यूवर ये थी वीडियो और आपने देखा नीचे से पानी भी निकल रहा है और नीचे से गैस भी निकल रही है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत इसके ऊपर इक़दामात नहीं कर रही। ये बड़ी कमजोरी रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की कि हम लोग अपने ज़खायर को ज़ाया कर रहे हैं, हम लोग अपने ज़खायर के ऊपर काम नहीं करते। शायद वसीम भाई आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के अंदर एक पहाड़ है जिसको ऐसे खरोचने से नीचे से आग निकलती है।
शायद आपको पता है कि नहीं पता, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि बलूचिस्तान के अंदर अगर आप जमीन को ऐसे हटाएंगे तो नीचे से आग निकलती है और वो आग सूखी जगह पे भी लग जाती है कि इतनी गैस है। तो यहां पर भी इतनी ज्यादा जखायर हैं, बांग्लादेश में भी जखायर हैं, निकल रहे हैं, लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का बिल्कुल भी इसके ऊपर ख्याल नहीं है। ये बोला आयरलैंड है बांग्लादेश के अंदर, यहाँ पे साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, तबाही बहुत ज्यादा मचती है, समुद्री साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा तबाही मचती रही है और इस बोला आयरलैंड के ऊपर गैस के बड़े जखायर मौजूद हैं। आप देखें तो ये कतर, यूएई, सऊदी अरब, इनको जितनी भी मदनियात मिली हैं समुंदर के किनारे से मिली हैं। समुंदर के साथ ही ये लोग गैस भी निकाल रहे हैं, ये लोग वहां पर फ्यूल भी निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये कितना फायदा उठा रहे हैं। आज अगर शुमार किया जाए तो कतर आज दुनिया भर को सप्लाई दे रहा है गैस की। तो बांग्लादेश का फ्यूचर भी चेंज हो सकता है अगर बांग्लादेश के गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे। ये देखें लोग दिखा भी रहे हैं निकाल के गैस। बिल्कुल ऐसे ही उसने अभी दिखाया भी था। जैसे देखें हम पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी ऐसी मदनियात हैं जिनके ऊपर काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, एक प्लान नहीं बन रहा। हुकूमत जो आती है, हुकूमत की कोशिश होती है कि हम लोग जो बाहर से चीज़ खरीद कर लाते हैं उसके अंदर हमारा अपना टैक्स भी इंक्लूड होता है, हुकूमत को टैक्स जाता है। यही अगर सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर इसको सारा कुछ उजागर करें, यहाँ से चीज़ें निकालें, इसके ऊपर सारी मेहनत करें, तो वही हमें बिल्कुल सस्ते दामों के अंदर मिल सकती है चीज़ और आवाम को महंगाई जो है ना वो बिल्कुल कम होकर चीज़ मिल सकती है। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर जो गैस निकली है, गैस की शिद्दत बहुत ज़्यादा, अभी भी बांग्लादेश के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जिन तक गैस नहीं पहुंची। उसकी मेन वजह यह है कि अपनी जो मुल्क के अंदर ज़ख़ीरे जो निकलते हैं उनको ये लोग मॉडिफाई नहीं करते, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर हुकूमत इसके ऊपर ध्यान दे और हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए तो फिर आवाम को महंगाई से भी रिलीफ मिलेगा और आवाम तक ये सहूलतें भी आसानी से पहुंच सकेंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि अल जजीरा यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है और दिखा रहा है कि देखिए बांग्लादेश के अंदर इतने ज्यादा ज़खायर हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग कर्जा लेने के बाद हम लोग गुलाम बने हुए हैं, हमारे अंदर कोई इख्तियारात नहीं है कि हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम कर लें, हम अपनी मर्जी से अपने ज़खायर का इस्तेमाल कर लें। हमने तो पेट्रोल के ऊपर रिलीफ देना हो तो फिर भी पूछते हैं कि IMF हमें अगर इजाजत देगी तो फिर हम रिलीफ देंगे, वरना हमें रिलीफ नहीं देना। जी बिल्कुल। और इसी तरह के हाल बांग्लादेश के अंदर है। आप देखें इतने ज्यादा सोर्स हैं, ये आपके सामने है कि वहां से निकल रही है गैस, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, कोई लोकल मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखें तो आज भी बांग्लादेश इन मदनियात का इस्तेमाल करने से कासिर है। बांग्लादेश के अंदर आज भी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर बांग्लादेश इसका इस्तेमाल करे तो आज बांग्लादेश का शुमार भी कतर की तरह हो, कतर की तरह अमीर मुल्कों में हो। तो बांग्लादेश साउथ एशिया का टाइगर बनने की दौड़ में है, बन भी चुका है, कुछ बनने के करीब है। और अगर बांग्लादेश चाहता है कि साउथ एशिया के अंदर एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है, अपनी शिनाख्त बनानी है, तो बांग्लादेश को इस तरह के सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बांग्लादेश को इस गैस को महफूज करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करते हुए पैसा भी कमाना चाहिए और अपने लोगों को सहूलत भी देनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।